Hello students, now welcome to Reshmi Singh classes. Today's topic is judiciary. This is the topic of civics for class 8. The first thing comes in our mind, what is judiciary? We have learned about that we have the three organs of government in India: executive, legislature and judiciary. Executives execute the laws which is made by the legislature, and the legislature make the laws for the country, and judiciary settle down the disputes and interpret the laws. तो what is judiciary? Judiciary means the system of courts. जो हम courts देखते हैं, civil court, criminal courts, district courts, high court, supreme court, these all systems comes in judicial system या system of courts. So this is the third organ of the government and it is very important, बहुत important है. And we have studied about the rule of law. What is rule of law? It means the law is supreme. Nobody is above the law. Law is supreme, not the law maker. जो law बनाते हैं, they are also under the law. मतलब law makers भी supreme नहीं है. Law is supreme. And to ensure this judicial system, rule of law is very important. Rule of law बहुत important है, and judiciary plays a crucial role in democracy because in India we have democracy. So in democracy the judiciary plays an important role, क्योंकि इसके जो एक key feature है that is the equality. So everyone gets the equal justice. तो उसके लिए judiciary जो है that is so important. क्लियर. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी? टू इम्पॉर्टेंट तो सबको पता ही है, टू इंटरप्रेट द लॉज एंड सेटल डाउन द डिस्प्यूट्स. तो फर्स्ट द रोल ऑफ जुडिशरी इज डिस्प्यूट रिसोल्यूशन. तो विच टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट्स बिटवीन द सिटीजन्स. किसी भी दो के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो दैट कैन बी सेटल डाउन इन द कोर्ट्स. And citizens and government, if there is a dispute between the between the citizen and government. हाकिम शेख ने किया था, याद होगा क्लास 7 में we have studied. तो गवर्नमेंट ने उसमें, कोर्ट ने उसमें डिसीजन दिया था. एंड बिटवीन टू स्टेट्स, और दो स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो हम आगे पढ़ेंगे, वो डिस्प्यूट हुआ था जिसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था इंटरफेयर करके. एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्यूशन, मतलब उसका सॉल्यूशन कहाँ से मिलता है? थ्रू जुडिशरी. सो जुडिशरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिसोल्यूशन ऑफ द केसेस और डिस्प्यूट्स. एंड सेकेंड, जुडिशियल रिव्यू. Judicial review is very very important. What is judicial review? As a final interpreter of the constitution, judiciary has the power to strike down laws. Means judiciary has the power to review the law, or if they think this law is not beneficial for the country, the judiciary can strike down. उसको ख़त्म null and void कर सकती है अगर वो हमारे constitution के against में law है. तो दिस पावर इज गिवन टू जुडिशरी. दिस इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू. जो भी लॉ बनता है उसको रिव्यू करना, वेदर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्री एंड इट इज़, जैसे कहना चाहिए, दिस इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. क्लियर. सो दिस इज नोन एज द जुडिशियल रिव्यू. अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स. ये हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा है दैट एवरी वन इज फ्री टू मूव टू द कोर्ट व्हेन ही थिंक्स दैट हिज फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड. ही इज फ्री टू मूव टू द कोर्ट एंड फाइल अ केस इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. हाकिम शेख की स्टोरी याद है आपको? ही वॉज द लेबरर. He was the laborer in the agricultural organization and accidentally he fell down from the running train and he got head injury. और 8-9 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ले जाने के बाद every hospital refused to admit him and after all he was admitted in the private nursing home. और वहाँ पे बहुत सारा पैसा लगता है और ठीक होने के बाद he and his organization filed a case
इन अ कोर्ट एंड कोर्ट का डिसीजन होता है बिकॉज दिस इज द राइट ऑफ एवरी पीपल, राइट ऑफ लाइफ, right of life and right of life include the right to health also. तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है टू प्रोवाइड द हेल्थ फैसिलिटीज़ टू ईच एंड एवरी पर्सन. सो क्योंकि गवर्नमेंट हैज़ फेल टू गिव दिस फैसिलिटी, सो एवरी एक्सपेंसेस ऑफ हाकिम शेख वो किसको बियर करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को बियर करना पड़ेगा. तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर कहना चाहिए और अपहोल्डिंग द लॉज एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स. क्लियर? सो दिस इज द रोल ऑफ जुडिशरी. नाउ व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है? व्हाट डज इट मीन्स? व्हाट मीन्स इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. मीन्स दिस ऑर्गन इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा देन द जजेस they have to give their verdict on behalf of government. गवर्नमेंट के बिहाफ पे उन्हीं के फेवर में उनको अपना वर्डिक्ट या अपना जजमेंट देना पड़ेगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि द जुडिशरी शुड बी अ इंडिपेंडेंट ऑर्गन. उसको एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन होना है. वाई? क्यों होना है? सो दैट जजेस कैन गिव देयर जजमेंट विदाउट फियर एंड प्रेशर. उनके ऊपर कोई प्रेशर और डर नहीं होना चाहिए, फियर नहीं होना चाहिए किसी का, गवर्नमेंट का. सपोज एक एग्जांपल लो, एक पॉलिटिशियन है और उसने आपकी लैंड को एनक्रोच कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया और आप जाते हैं कोर्ट में. और कोर्ट क्योंकि द कोर्ट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो उस पॉलिटिशियन के फेवर में ही जजमेंट देगा. आपको वहाँ पे फेयर जजमेंट नहीं मिलेगा. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, ताकि जो जज है किसी के भी कंट्रोल में होके या डर से अपना जजमेंट ना दे. एंड हाउ इट इज़ इंश्योर्ड? हम कैसे इंश्योर करेंगे कि ये जो ऑर्गन है या जुडिशरी है ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है? बिकॉज सेपरेशन ऑफ पावर. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे हैव सेपरेट द पावर्स ऑफ एवरी ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. उनकी अलग अलग पावर्स है एंड दे कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ अदर ऑर्गन. कोई किसी के भी वर्किंग में इंटरफेयर नहीं कर सकता है. एंड दिस इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सबकी पावर और फंक्शंस लिखे हुए हैं. थ्रू अपॉइंटमेंट्स. अब जज का अपॉइंटमेंट अगर कोई पॉलिटिशियन करता है तो वो उसके कंट्रोल में रहेगा और उसी के फेवर में जजमेंट करेगा. तो जो अपॉइंटमेंट होता है दीज जजेस वर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. बहुत कम जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स की राय ली जाती है. सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की राय से प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है दीज जजेस. इम्पॉसिबल टू रिमूव. Once they have given the office, it is very impossible to remove the judge from their office. उनको उनके ऑफिस से रिमूव नहीं कर सकते हैं. कर सकते हैं, एक प्रोसीजर है impeachment, but this procedure is very very difficult, tedious procedure है. 2/3 majority of each the houses is required and बहुत मुश्किल होता है. तो ये बहुत मुश्किल है. इट मीन्स एक बार अगर किसी जज को हमने अपॉइंट कर लिया तो उसको रिमूव करना इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल. एंड सैलरीज एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड. और एक बार जो सैलरीज हो गई, अलाउंसेस हो गए, दैट कैन नॉट बी रिड्यूस. उनको हम रिड्यूस कम नहीं कर सकते. ठीक है. एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू जो मैंने आपको बताया, जो भी लेजिस्लेचर ने रूल बनाया, लॉ बनाया, एग्जीक्यूट किया, बट अगर जुडिशरी चाहे तो उसको ख़त्म कर सकती है, स्ट्राइक डाउन कर सकती है कि वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. ये भी एक पावर इसको जुडिशरी को दी हुई है. एंड एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. और जो हमारी जुडिशरी है इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. इफ़ fundamental rights are violated, so everybody is free to go to the court and file a case against that person or government also. Clear? तो अगर ये चीज़ें हैं तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि
जो जुडिशरी है, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसकी वजह से वो किसी के कंट्रोल में नहीं है और अपना डिसीज़न बिल्कुल फियरलेस होके, किसी के पावर में, किसी के प्रेशर में होके वो नहीं देंगे, एकदम फेयर जजमेंट देंगे। क्लियर? समझ में आया बेटा? आज हम इतना ही करेंगे। समझ में आ गया है आपको? तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। एक बार फिर से हम अब कर लेते हैं। व्हाट इज जुडिशरी? जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, ये जुडिशियल सिस्टम जो है, एंड दिस इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। And rule of law is established in our country because we are living in a democratic country, and rule of law means law is supreme. Nobody is above the law. And what is the role of judiciary? To interpret the laws, interpret करना laws को, and dispute resolution. किसी के बीच में भी dispute है, दो लोगों के बीच में है, दो government means the state government और state government and center government, किसी के बीच में भी dispute है, that can be solved by judiciary only. And judicial review means this power is given to judiciary only to review the laws, and if they think that this law is not according to the constitution, तो वो उसको null and void कर सकते हैं या strike down कर सकते हैं। And upholding the laws and enforcing fundamental rights, everybody is free to move to the courts. And what is an independent judiciary? वोट क्या है? इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब अगर गवर्नमेंट क्या किसी के भी कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स दिस इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। एंड वाई, क्यों होना चाहिए इंडिपेंडेंस? सो द जजेस कैन गिव देयर जजमेंट विदाउट फियर एंड प्रेशर, ताकि वो अपना जो जजमेंट है वो किसी के प्रेशर में आके ना दें। एंड हाउ इट इज़ एंश्योर्ड कि जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट? सेपरेशन ऑफ पावर। According to constitution, every organ has their power and function separate. कोई किसी में इंटरफेयर नहीं कर सकता है थ्रू अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजेस को, तो जो प्रेसिडेंट है वो कोई एक पॉलिटिशियन नहीं है। ठीक है, समझ में आया? एंड इम्पॉसिबल टू रिमूव once they have given the seat of judge or chief justice, उनको impossible है रिमूव करना from their office, and salary and allowances cannot be reduced, नहीं उसको रिड्यूस कर सकते। एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया है, एंड एक्ट एज ए गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है, और यू कैन से दे एक्ट एज अ गार्जियन। क्लियर? अगर आपको समझ में आ गया है बेटा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।